Assalamu alaikum Minal, how are you? Walaikum assalam. I'm good. How are you? I'm perfectly fine, thank you for asking. कैसे जा रहा है आपका रमज़ान मिनाल? It's quite hectic because in the last Ramzan I was doing like 9 to 4, but this time I have like switched to New York time, so it's kind of like I actually have like food coma thing. So after like iftari, I actually want to sleep, but I have to work, so it's kind of difficult. But it's going well. How's Nice. your Ramadan going? It's pretty chill. Like पहले I used to again work within a similar time zone, but अभी like it's more of like chill क्योंकि we also work with US वाली side पे, but they understand कि Mm. अच्छा रमज़ान चल रहा है तो अभी छेड़ना नहीं है इन्हें ज़्यादा. तो yeah, it's Yeah. pretty much chill. तो alhamdulillah, it's good. So before we dive into like the discussion part, yeah, conversation, I would love to hear about your journey. Minal, ke how did you start till now? Like, what are you currently doing? So I would love to hear about journey, and then we'll continue from here. Okay, so I have like background in psychology. I have done my bachelor's in psychology, and it was more like I was always a kind of student that was not interested in being a doctor. So it's a basic myth that everyone wants to be a doctor. I wasn't that person, and I was very bad in mathematics as well. So people around me, and even I was afraid that what will I do then. After like getting to know more degrees and everything, I got to know that I am a very keen observer and I should like opt for psychology. And while I was doing psychology, I was particularly interested in cognitive psychology, which is like your like emotions and decision making, your logical thinking, your reasoning and everything. So while I was pursuing my degree, there was no other options than like there are common options of like being a clinical psychologist or industrial or organizational psychologist. So Corona helped me a lot. We were like stuck in homes, so I did some research and I started doing my courses in Coursera. So there was this course of like this was a very famous course at Google UI UX designer. So I started that to know like this is a new thing, UI UX. What is UI UX? So it literally took me like 1.5 year to complete that because I used to do it in my like summer vacations. So when I was like graduating, I was pretty much sure that clinical is not my cup of tea. So I was looking forward for some other options. So UI UX was the thing that like intrigued me, and I randomly applied on LinkedIn for like certain internships. So I got an internship, and it was more like a very disheartening thing for me that they literally gave me a social media post for designing. So I was like, this is not something I want to do. I want to do something else. Like, talk to me. What's users thinking? What's users doing? And you are literally telling me to make a post for like Mother's Day. So I quit that, and I took like at least 2 months to got a new job, and that was a Dubai-based company. So there was a person there who is like my mentor. So he guided me like properly that how psychology and UX are connected and how you are a valuable asset to our company. And he literally guided me like how can you connect the UX and psychology. So he was the only person that didn't ask me like how why did you switch from psychology to UX. So then I switched to like Dubizzle Labs. I worked there for like almost 1 year, and I learned a lot there about the like culture and everything because previously I was working in Dubai base, so it was more like a cross culture company. But then it was like I think I need to like explore more opportunities, so I started exploring, and I got the job like remote job at Haddad, where I currently working on, and it's the best platform that I have ever worked on because they literally make me feel like a UX designer because I have to like do all of the psychology magic in my work. So that's how far I'm going from psychology to UX and product designing. That's awesome. That's pretty interesting. But जब भी मेरे mind में by the way चीज़ आ रही है, you have mentioned a lot के that's a very common practice कि जिसमें they have hired you, bring you in the team for the UX role or product role, and then they ask you to make the social media post. By the way, that's very common. ये बहुत गलत है, but Yeah. still, it is what it is. So, yeah. तो just as you entered in the field of design, ठीक है, even know that you were a student of a psychology, तो पहली तो चीज़ जो मेरे माइंड में आती है कि how did you crack the interviews? Because
क्रैकिंग इंटरव्यूज़ इज़ समथिंग जो कि इस जनरेशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो अगर दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग तो वो उस पर बता देते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही भाई, ना तो ये हमारी जेडी में है, ना तो ये जो है ना तो ये मेरी वैल्यू से अलाइन करता है, लाइक इस तरह की चीज़ें. सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, हाउ डिड इट हेल्प टू get through those interviews? So like when I started the Google course, so there were this like at the end of the seventh course you have to like make a design for the social goodness. So I literally made that design. I had the Shabash Rifala laptop, so I used to work on that. But Figma literally sucked on that, by the way. So I was working on Adobe XD, and I literally like made 2 or 3 case studies where I was particularly mentioning the UX part, where I learned from the Google one. Na? So that's something that when I landed my first interview for like internship, so they literally asked me like, how do you know these things? Just like user journey, storyboarding, and informational architecture. These were the things that were not so much common at that time, like back in 2023. So they were the things that they asked me, but I literally told them that I do not know much of like CSS, like background knowledge, front end, back end, and also I'm not good at like UI. So they were like, no, we will like get to know because it's an internship and you will learn a lot. But I literally learned like little bit from them because they got the psychology one project. So they were particularly hiring for that. When that ended, they shifted me to the social media designing and everything. So, but in like entertainer, it was that person was very aware of the situation that psychology is very much related to UX. So he literally asked me all of that questions that I wasn't even expecting from him. He knew that people from like big companies, Meta, Google, they have people from psychology background, and so it's like I think Allah makes a path for you when you start working. So it was a very like it wasn't like easy, but now I'm stating it to you. It's kind of look like that Allah made path easy for me. So while in Dubazel, it was also like I literally tell them about the if there is a very common term, cognitive load. When I started working, people did not know about that term. So I literally had like 2 3 keywords to impress the interviewer that I know this and it can also help you like this. And I usually give an example of like OTP code. You don't have like other more than 7. Why is it? Because your working memory cannot like process after that. So it's the main reason that we have like 4 to 7 digits. So this was something I literally had like 2 or 3 things that I used to say to everyone, and they were like, "Wow, you know stuff." Because people are mostly from the UI background, so they mostly talk about color. But I am very much interested in color psychology as well, because it's the main thing that if you are designing a very good UX, very good UI, but you couldn't like capture the theme of the platform, I don't think so user will feel comfortable. Like if you are designing for a people for like anxiety or something and you are giving pop colors, they will literally abandon your product. They will not use it. So these are all the things that psychology helps you learn. Awesome, awesome. By the way, जब आप ये सारी चीज़ें बता रहे थे, so the good thing about this is कि you can think through this a lot because and plus this is like the plus one for you as well कि we had to learn this कि color psychology क्या होती है क्या नहीं होती. You've been already doing that, ठीक है, in your 4 years program. So इवन वो आपको और भी ज़्यादा डेप्थ में लेके जाता है कि लाइक किस तरह के ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं, किस तरह के लाइक इमोशंस होते हैं, हाउ डू थिंग्स ट्रिगर्स इमोशंस एंड स्टफ लाइक दैट. तो बीइंग अ साइकोलॉजिकल स्टूडेंट, ठीक है, what kind of you know things that kept you way more engaged, या इसको ऐसे कह सकते हैं हम कि जो आपने साइकोलॉजी में चीज़ें सीखी थी, राइट, व्हेन इट कम्स टू योर डिज़ाइन डिसीजंस, तो हाउ डू दे आर हेल्पफुल इन कमिंग अप और मे बी यू टेकिंग डिसीजंस फॉर द प्रोडक्ट. तो वो लाइक जो भी साइकोलॉजी की चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे कैसे हेल्प करती हैं? Okay, so the common practice जब मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया था तो ये था कि people used to think that they are users.
So literally people used to say if you have like 3+ years of experience, you don't have to do the A/B testing and other things because you already know what people are thinking and what people are doing. So just like design it. So I told them that user is always a user and we are not users, because since we have like empathy wala pura wo discussions, even we have empathy maps, but people do not know about empathy, what empathy is. It's just like you have to connect with the person, what they are feeling, not what you are feeling. So it's more like if you are designing, you have to keep yourself aside and think about the people who are you designing for. So target audience is something that in something that it's not for me. So I have to keep for people that will be using that platform. And I actually, like, if I design something, I always test with people, even if it's like cross culture or something. I connect with them on LinkedIn and ask about their things. I worked on a new like automobile platform where I connected with a lot of my friends and asked them like how what's their psychology behind this, what are the steps they follow for like selling and buying. It was an Egyptian platform, but I connected with people who are using Parkwheel, which is a Pakistani platform, to get to know but I wasn't restricted on that. I connected with people from Egypt also. I have like LinkedIn connection with them, BB. So the main thing is actually like I am not a user. I have to like design for people for their ease. So it's more like I actually do not deliver things like in 2 days or 3 days, or I do not think about UI as such. So for me, I connect with users. So yes, I think psychology really helped me in this, because if you have like a background from other fields, you literally don't have like even the good listening skills. Because if someone is like bad mouthing your product, it's not called bad mouthing, but if they're giving a feedback, you have to be open for the feedback if someone is telling you something. So patience, and it's more like there are the very basic traits that I think every designer should have. Even if their colleagues are giving them feedback, they should be like open to that if someone is saying something, you have to opt to that, because at some point you get obsessed with your design. And psychology literally helped me in this, because I know that I will get attached to my design, I will get like obsessed with my design, and I will not get a proper input, because I will like everything I design. So I have to ask people around me, and I have to ask around them. So it's more like a complete domain. Psychology literally helped me everywhere. But there were a lot of things that I have to learn. You have to like get knowledge for like back end and front end. इसके बगैर गुजारा नहीं होता है. So I used to do like a free camp base. So learning is very important, I think, because if you get stuck somewhere, you should like accept that you don't know that thing and you have to learn it. So these are all the things that I think that really helped me. Awesome. अच्छा, you were talking about the feedbacks in it. तो like जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता बैक इन द डे साइकोलॉजी का, ठीक है, सो हमें तो ये होता है कि अच्छा जो भी यूज़र कह रहा है अभी एज अ फीडबैक, ही मीन्स दैट, ठीक है, बट काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि यूज़र अगर कुछ भी कह रहा है तो उसके कहने का मकसद कुछ और है, बट उसकी वर्डिंग कुछ और है, राइट? तो वो हम उस तरह से, वो जिसे कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, वो हम शायद प्रॉपरली नहीं कर पाते. तो डू यू हैव एनी काइंड ऑफ tips for that, कि whenever user is saying something but he means something else, so how should anybody or anyone who's a So designer, I yeah, who should read between the lines? I think it's a part of the designer, but honestly, it's more like you have to learn the basic communication wali skills, because there are a lot of things you have to get to know about people, like उनकी personalities होती हैं, personality types होती हैं. You get to know if a person is introvert or extrovert. So जो extroverts होते हैं, they are social and outgoing. तो उनका जो थोड़ा social exposure होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है. So I think they learn more from their social gatherings. तो उनका जो communication होती है वो ज़्यादा एक वो होती है. बट इंट्रोवर्ट्स को आपको थोड़ा कनेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो थोड़े से अपने आप में रहते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है. सो ये आइस ब्रेकिंग भी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है. लाइक यू हैव टू लर्न कि अगला बंदा कैसा है. सो इंट्रोवर्ट्स भी एक टाइम के बाद पे आपको आपके साथ जब वो फ्रेंडली हो जाते हैं तो वो ओपन कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं. सो ये गैप तब आता है जब ओपन नहीं हो रही होती. और इसके अलावा भी इफ यू आर लाइक रेंडमली टेकिंग फीडबैक फ्रॉम समवन, तो पीपल हैव बेसिक साइकोलॉजी के वो आपकी बात पे इतना ध्यान नहीं देते,
बिकॉज उनका कोई फायदा नहीं हो रहा, ना उनका कोई नुकसान हो रहा है. जब आप उनको उस चीज के बारे में बताएंगे कि लाइक दिस थिंग विल हेल्प यू अलॉट इन दीज डोमेन्स, सो आप इसको यूज करोगे तो ऐसे होगा ऐसे होगा. सो उनको बेसिक जो है वो आई थिंक उनको प्रोवाइड करनी चाहिए कि व्हाट्स दिस प्रोडक्ट इज. बिकॉज हम जो है वो बहुत जल्दी में डिजाइनिंग करते हैं. हमारा ये होता है कि ये बस आज हमें कुछ मिला डिजाइन करने के लिए हम कर लें. सो इट्स नॉट लाइक दिस. यू हैव टू बी पेशेंट इनफ कि आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट को समझना है, अपनी प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस को, और फिर आपने उनके साथ कनेक्ट करना है. सो कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इसमें भी लाइक व्हेन आई स्टडीड साइकोलॉजी, तो उसमें हम जो है वो सिंस वी हैड टू डील विद पेशेंट्स जो साइकोलॉजिकली जिनको डिसऑर्डर्स होते हैं या जो जिनको थोड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं. सो उनके साथ रह रहकर यू गेट टू नो कि कितनी डिफिकल्ट डीलिंग्स होती हैं, बिकॉज दे आर नॉट नॉर्मल पीपल ना, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स. तो आई थिंक इट हेल्प मी अलॉट के आई हैव फ्लेक्सिबल नेचर विद एवरीवन. कि अगर कोई बंदा मुझे अच्छा फीडबैक दे रहा है, बुरा फीडबैक दे रहा है, तो आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गेट टू नो कि आपने जो है वो अगले बंदे से जो कोई चीज़ कह रहा है वो उसका क्या मीनिंग है. बिकॉज इफ़ यू आर लाइक हैव 1 month ऑफ एक्सपीरियंस, तो उसमें सब चीज़ें न्यू होती हैं, तो इतना एक्सपोजर नहीं होता. बट विद टाइम आपको एटलीस्ट थोड़ा पता लगने लग जाता है कि लाइक आपने अपने यूज़र के साथ कैसे कनेक्ट करना है. बिकॉज सारे पेन पॉइंट्स उसी के ही हैं. यू आर जस्ट लाइक ईजिंग थिंग्स फॉर देम. यू आर नॉट डिजाइनिंग फॉर योर सेल्फ. So these are all the things that I think very important. मेक सेंस. सो जो चीज़ मुझे समझ आई है वो ये है कि यू हैव टू ब्रिंग दैम एट अ पॉइंट वेयर दे बेसिकली ओपनली कम्युनिकेट्स विद यू. तब इट्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैम, एंड नॉट ओनली Exactly. अंडरस्टैंड दैम बट ऑल्सो इम्प्लीमेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू वट एवर दैट इज़ कूल. अच्छा, Yes. अनदर थिंग जो कि एक और लाइक सबसे बड़ा इशू आता है डिज़ाइनर्स के अंदर, दैट इज़ अगेन द कम्युनिकेशन. ठीक है, दे हैव प्रोबेबली थॉट अ लॉट. ठीक है, उन्होंने based on that thoughts, context, data, they have designed probably 1, 2 or 3 solutions for it. ठीक है, now it's time to present to the stakeholders. ठीक है, तो what are your like go to tips, या how do you actually present your solutions to the stakeholders जिसमें आप उन्हें one way or the other convince कर लें कि why this solution is the best. So like stakeholders जो है since they have to deal with business, तो उनका कोई कंसर्न ज़्यादा नहीं होता है यूजर्स के साथ. दे मतलब परसेंटेज अगर देखें तो दे आर मोर इनटू कि हमारा बिजनेस कैसे सक्सेसफुल होगा. सो उनको इस पार्ट के ऊपर कन्विंस करना चाहिए कि लाइक आपका बिजनेस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है यूजर से. एंड आई थिंक आई यूज टू गिव random interviews to like gain experience, and there was this interview and a person asked me कि you have like designed 2 variations जिसमें आपने जो है वो एक येलो बटन रख दिया प्राइमरी और दूसरे के अंदर ब्लू बटन रख दिया. अब आपने स्टेक होल्डर्स को बताना है, कन्विंस करना है कि ब्लू जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप कैसे करेंगी. सो आई वॉज वेरी लाइक मुझे 3 महीने हुए थे काम करते हुए. सो आई वॉज लाइक मैं उनको कहूंगी कि ये कलर जो है वो विजुअली, सो आई लिटरली एक्सप्लेन द होल कलर साइकोलॉजी टू देम कि इसके पीछे जो है वो इसका ये है. सो दैट पर्सन टोल्ड मी कि आपने उनको फैक्ट्स दिखाने हैं. यू हैव टू गेन डेटा फ्रॉम योर यूजर. आप उनको स्टेक होल्डर्स जो है उनको परसेंटेज, प्रॉफिट, ये सब चीजें समझ आती हैं. सो आपने जो है सिंस आई एम टॉकिंग टू यू, तो इसमें भी ये देखें कि आई हैव लर्न कि आपने स्टेक होल्डर्स को भी समझना है कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, कि उनकी साइकी कैसे वर्क कर रही है. आप उनको परसेंटेज दिखाओगे कि हमने जो है वो यूजर से डेटा लिया है, उनमें से इतने परसेंट ने 60% ने हमें ब्लू कलर कहा है एंड 40% ने हमें येलो कलर कहा है. सो वी आर गोइंग विद दैट कलर. तो उनको समझ भी आएगा कि हाँ ठीक है, हम अपनी प्रोडक्ट जो जिस बंदे के साथ मतलब जिन यूजर्स को दे रहे हैं उनका ये डिसीजन है, तो ऑब्वियसली दे आर द पीपल हु विल गिव अस बेनिफिट. तो आई थिंक यू हैव टू डील विद ईच पर्सन उसके हिसाब से. इफ यू आर कोडिंग करता रहता है तो उसको भी उसके हिसाब से चीजें समझानी चाहिए. जैसे मोस्टली ऐसे होता है कि हम डिजाइन कर देते हैं, वो इतना मुश्किल होता है डेवलपर के लिए कि वो हमें पीछे बैठा दुआएं दे रहा होता है. लिटरली वो हमें दुआएं दे रहा होता है कि ये क्या बना के दे रहे हैं. तो उसमें भी ये है कि लाइक यू शुड टॉक टू देम, और कोई मिडल ग्राउंड निकालना चाहिए. अगर आप कोई चीज न्यू चीज भी इन्वेंट करना चाह रहे हो तो यू शुड टॉक टू देम कि लाइक आई वांट टू डू दिस, बट यू टेल मी लाइक मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, ये क्या. एवरी पर्सन इज लाइक ओपन कम्युनिकेटर टू दिस. वो कहेंगे हम नहीं कर सकते हैं. सो यू कन्विंस देम विद लाइक नहीं यार ये कुछ न्यू चीज हम ट्राई करना चाह रहे हैं, प्लीज कुछ थोड़ा बहुत तो आगे हो सकता होगा. वो आई थिंक कि आपको अगले बंदे के साथ जो है वो कनेक्ट करना पड़ता है एट एवरी लेवल.
तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आई नो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिजाइनर्स आर इंट्रोवर्ट्स, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी डेवलपर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करें, बट पर्सनैलिटी इज अ लर्न बिहेवियर। तो आप बेशक अगर आपके आसपास कोई एक्सट्रोवर्ट बंदा है एंड ही और शी इज लाइक डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब इन लाइक कम्युनिकेटिंग विद एवरीवन, यू शुड लर्न फ्रॉम देम कि ओके दिस पर्सन इज कम्युनिकेटिंग इन अ सेंस, बिकॉज हर कंपनी में कोई ना कोई सीनियर होता है, एंड द reason they are senior is because they have something that you don't have to, we should like get learn from them as well. So I think my answer is that you have to convince them with percentage and you have to give them facts, not emotional. यूजर के साथ आप इमोशनल डीलिंग करते हैं और स्टेक होल्डर्स के साथ आप लॉजिकल डीलिंग करते हैं। अगर आप स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो इमोशनल हो जाते हैं तो वो आई डोंट थिंक सो दे विल गेट कन्विंस फ्रॉम दैट। मेक सेंस। और कभी कभी हिप्नोटाइज वर्क करता है? नहीं, एक्चुअली आई हैव अ वेरी गुड टिप कि मैं शुरू में जो है वो लाइक व्हेन आई टॉक टू समवन तो मैं किसी चीज़ पे अपना कोई ओपिनियन नहीं देती हूँ, आई लिसन, बिकॉज इससे आपको अगले बंदे का बहुत पता लग जाता है कि लाइक उसकी डोमेन्स किस तरह की हैं और क्या है। तो इट्स मोर ऑफ लाइक अ हिप्नोटाइजी कि जब आपको अगले बंदे का पता लग जाता है कि अच्छा हाँ ठीक है, इसको इसकी पर्सनालिटी के अंदर ये पार्ट है, तो अगर आप उसको हाईलाइट करके बताओ तो वो अगला बंदा कहते हैं लाइक मतलब दिस इज कन्विंसिंग। तो दिस इज समथिंग, बट हिप्नोटाइज पाकिस्तान में जो है वो मेरा नहीं ख्याल के ना पढ़ाते हैं ना कराते हैं, बट इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग एंड आई विश आई कुड डू दैट। तो मैं उनसे कंपनी खरीद लेती, डिजाइन ना अप्रूव कराती, कंपनी खरीद के बैठ या जाती। या ये तो काफ़ी हेल्पफुल होता है, लाइक प्रोबेबली इन एवरी फीचर पुश आप अपना रेज करवा लेती या प्रमोशन करवा लेती, तो दैट वाज वेरी Yeah. फैसिनेटिंग। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ टूल सेट पे तो मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल होता हूँ बिकॉज हर बंदे का एक अपना टूल सेट होता है। सो करेंटली सिंस द क्लाउड इज़ आउट देयर, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, देन फिग्मा का जो अपना AI है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ टेक स्टैक यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व अ प्रॉब्लम? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है, राइट? सो हाउ वुड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम बट थ्रू डिफरेंट या इवन सेम टूल सेट? तो लाइक व्हाट वुड योर प्रोसेस टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? यूएक्स का सारा पार्ट मैं खुद करती हूँ, because I don't know, it's my biasness or something, but I cannot rely on a tool for that because I am making a design for a user who is a human and उसे मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। बिकॉज चैट जीपीटी से अगर आप बात करते हो तो चैट जीपीटी अगर आप उसको कहोगे कि मुझे लॉजिकल आंसर दो तो आपको लॉजिकल दे देगा, इमोशनल कहोगे तो आपको इमोशनल दे देगा, उसकी अपनी कोई वो चीज़ नहीं है। Yeah. बट येस, यूएक्स का सारा पार्ट करने के बाद मैं उसको सिंस जब ये सब क्लॉड और कर्सर और लवेबल और ये सब चीज़ें नहीं थी तो आई यूज टू गेट हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी कि मतलब दिस इज समथिंग, इफ आई हैव मिस समथिंग तो गाइड मी। बट ऑनेस्टली लाइक अभी अगर मैं बात करूँ करंटली जो है वो मैं हदाद में जो काम कर रही हूँ उसमें हम जो है देर आर सर्टेन मॉड्यूल्स, तो हमारी स्पेसिफिक कंपनी के लोग हैं वो उन मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। सो हम पहले उनके साथ मीटिंग करते हैं और उनके पेन पॉइंट्स नोट करते हैं। आई एम एक्चुअली डूइंग द यूएक्स वाला वही टिपिकल वाला मेथड बिकॉज इट्स मोर लाइक मुझे यूएक्स वाला पार्ट खुद ही करना पड़ता है। इवन इफ यू हैव यूज वो फिग्मा का भी एआई और कर्सर भी, तो उसको जो है वो आपको बहुत लॉजिकल वो चीज़ें देनी पड़ती हैं। सो अगर आप यूएक्स का पार्ट भी उसको ही दे देते हो तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छा बना के देता है, बिकॉज मैंने स्टार्ट में इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा है। वो एक यूजर के साथ नहीं कनेक्ट कर रहा होता, वो उसी तरह आपको वो मैथमेटिकल इक्वेशंस में चीज़ तो बना कर दे देता है। और इवन आई ट्राइड मेकिंग 10 वेरिएशंस ऑन फिग्मा मेक, तो उसने मुझे बना के दे दी, बट उसके पास ये रीजनिंग नहीं है कि यूजर जो है वो किसके साथ कनेक्ट करेगा। वो मेरे एंड पे है क्योंकि मैंने अपने यूजर से पूछा है कि लाइक वो अपनी डेली रूटीन में कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो मैं एक मिडिल ग्राउंड हूँ, मुझे पता चल गया कि अच्छा ये सब चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आगे एआई से हेल्प लूंगी। It's not like AI. I have seen a lot of LinkedIn posts जिसपे there are a lot of people commenting कि AI will take our jobs. It's not like that. Even I don't think so कि एक बंदा जो है वो since product designing तो है ही humans के लिए ना, it's more like कि आप उनकी help कर रहे हो। And this is the thing, like I always had this thing in my mind कि I wanted to help people, तो मैं UX की तरफ मेरा ज़्यादा incline इसी वजह से है because I think कि I can help people। तो अगर मैंने वो सब चीज़ें AI को ही दे देनी है तो it's not like this, मतलब चीज़ वो बना के भी दे देता है। even if you have experimented it with it, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बाद में ठीक करनी पड़ती हैं।
क्योंकि वो अपने लिहाज से फ्लॉज बना देता है। अब मैं दोबारा जो है वो उन्हीं कोवर्कर्स के साथ मीटिंग करती हूँ, तो वो मुझे कहेंगी कि लाइक दिस इज नॉट समथिंग जो हम करते हैं। विजुअली भी बहुत अच्छा है, लाइक यूआई में बहुत हेल्प कर रहा है। यूआई में मेरा टाइम भी बहुत ज्यादा उससे जो है वो वेस्ट होना बंद हो गया, बिकॉज वो जिस तरह व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो ये 12 की पैडिंग रखनी है, ये 14 की पैडिंग रखनी है, फिर हर चीज़ का ध्यान रखना है। फिर ऑटो लेआउट आ गया, तो चलो उसमें थोड़ा सा सुकून हो गया। फिर ऑटो लेआउट के अंदर वो ऑटो लेआउट के इतने मसले आ गए कि अगर आप ऑटो लेआउट में ऑटो लेआउट लगा देते थे तो वो प्रॉब्लम करने लग गया। सो फिग्मा में हेल्प हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि यूएक्स में हेल्प हुआ है। एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग, आई थिंक अगर रेशियो देखी जाए तो मेरे लिहाज से तो यूएक्स की थोड़ी सी ज्यादा परसेंटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूआई। मतलब इट्स नॉट दैट कि मतलब अगर ऑब्वियसली अगर कोई चीज आपकी आंखों को अच्छी नहीं लगेगी तो आप वो भी यूज नहीं करोगे, बट अगर उसकी फंक्शनैलिटी नहीं है तो वो आंखों को जितनी भी अच्छी लग रही होगी वो किसी काम की नहीं होगी। तो दिस इज समथिंग लाइक, मतलब मैं तो ऐसे ही अभी तक काम कर रही हूँ। मतलब आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड टू एवरी न्यू टूल जो आता है। लवेबल भी आई हैव ट्राइड, इवन वो स्टिच भी मैंने ट्राई किया है। और अभी तक वैसे ऑनेस्टली मुझे वैसे फिग्मा मेक अच्छा लगा है, बिकॉज लेकिन उसमें भी जो है वो मोर ऑफ अ डोमेन ऐसे ही होता है कि वो रैंडम कोई चीज़ बना के दे देता है, उसकी कोई पीछे लॉजिक नहीं होती है। इट्स जस्ट अ सिंपल डिज़ाइन, और फिर मुझे सोचना पड़ता है कि अच्छा ये इसको मैं किस तरह मोल्ड करूंगी। बट फिग्मा का फ्रेम आप उसमें ले जाते हो अपनी फाइल में, वहाँ जाके आप उसको चेंज कर लेते हो, तो वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। सिंस यू आर अ डिज़ाइनर, ठीक है, यू आर अ क्रिएटिव पर्सन एज वेल, ठीक है, और सिंस यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, ठीक है, आप कहते हो जो कि बहुत अच्छी बात है कि इट्स यू आर डूइंग अ जॉब जो कि प्रॉब्ली आपकी ड्रीम जॉब इन अ सेंस है कि आपको अपना काम प्रॉपरली न सिर्फ करने दिया जाता है बट यू एन्जॉय वर्किंग देयर, ठीक है, यस। जो कि विच इज़ अ वेरी गुड थिंग व्हेन इट कम्स टू डूइंग एनी जॉब। जो कल्चर है यस। वहाँ का, ठीक है, योर कंपनीज कल्चर, सो हाउ इज़ इट वेरी हेल्पफुल या हेल्पफुल इन अ वे कि वो आपको अपने जो आपका प्रोग्रेस है न सिर्फ वो ट्रैक करने में हेल्प करता है बट आपके जो गोल्स हैं, जो भी आपने गोल्स रखे होते हैं, वो भी अचीव करने में हेल्प करता है। सो कल्चर किस तरह से हेल्प करता है इन अचीविंग योर गोल्स? ओके, सो सबसे बेस्ट चीज विच इज करेंटली आई एम लाइक हैविंग देयर इज के अगर इफ आई हैव डिजाइंड अ मॉड्यूल और उस पर मेरी मीटिंग हुई है बीपी के साथ, तो वो मुझे मीटिंग के पे ये नहीं कहता है कि ये अगली डेडलाइन है, इस पे मुझे चीज चाहिए। वो मुझे कहता है कि बेस्ड ऑन माई फीडबैक टेक वन डे एंड टेल मी व्हेन आर यू लाइक गिविंग मी द नेक्स्ट स्टफ लाइक दिस, के मतलब फीडबैक पूरा करके कब दोगी या क्या। तो मेरे एंड पे है कि मैंने जो डेडलाइन दी है उस पे एग्जैक्टली वो ही विल एक्सपेक्ट कि आई विल गिव हिम समथिंग टू रिव्यू, बट उससे पहले वो दैट पर्सन डिडंट इवन बॉदर टू आस्क मी के व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। लाइक ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी रमजान में सिंस मेरा जो है वो वर्किंग आवर स्टार्ट होते हैं अराउंड 5, और मैं बीच में पूरा इफ्तार की ब्रेक लेती हूँ एंड आई ऑल्सो गो फॉर अ वॉक। तो उसके बीच में दे लिटरली आस्क मी के व्हाट्स टाइम इज सूटेबल फॉर यू फॉर मीटिंग। तो इट्स मोर लाइक कि मुझे वहाँ पे थोड़ी ऑनरशिप लेने का मौका मिल रहा है, बिकॉज दैट पर्सन नोज कि ही इज नॉट अ डिजाइनर, तो वो टेक मैंने लेना है। बट पाकिस्तानी कंपनीज में क्या होता है कि आप कुछ चीज प्रेजेंट करने जाते हो, वो आपको कहते हैं अच्छा ये अब आपने कल जो है वो सारा फीडबैक करके नेक्स्ट मॉड्यूल दे देना है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आपके पास बैक टू बैक दोबारा आनी शुरू हो जाती हैं, बिकॉज आपने एक चीज के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया होता कि आप समझो और उसको करो। फिर जब वो प्रोडक्ट रिलीज होती है, आई इवन सॉ समवेयर कि वो प्रोडक्ट जो है वो उन्होंने बहुत जल्दी में बनाई और फिर प्रोडक्ट रिलीज कर दी, और जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुई। आप 2 दिन बेशक और लगाओ, लेकिन आप अपना काम, लिटरली आई हैव वर्कड इन लाइक पाकिस्तानी कंपनी, तो उसमें आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है कि यू कैन से समथिंग कि मैं अपनी डेडलाइन खुद दूंगी। और आपसे ट्रैक भी लिया जाता है, लाइक आप आ रहे हो, आप कब आ रहे हो, आप कब जा रहे हो, उसके बाद जो है वो आपने सारा दिन में क्या काम किया। इट्स मोर लाइक कि यहाँ पे मुझे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर मेरा, सिंस वी आर डिजाइनर्स, हम अपने ब्रेन से काम करते हैं, एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट आई नो कि आपका देर आर सम डेज व्हेन यू फील लेथार्जिक एंड फील वेरी लाइक डीमोटिवेटेड, और उसमें आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा होता। तो उसमें भी अगर पर्सन इज लाइक आपको सर पे सवार रहे और पूछे कि अब ये हो गया, अब वो हो गया, तो उसको कुछ भी नहीं होता। और उसमें आप क्या करते हो कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, आपकी लर्निंग भी खत्म हो जाती है। बिकॉज अगर मुझे 1 हफ्ते का टाइम मिला है, तो मैं उसमें क्या करती हूँ कि मैं पहले 2 दिन जो है वो, सिंस दिस इज समथिंग न्यू, तो मैं एक्सप्लोर करती हूँ कि व्हाट अदर पीपल आर डूइंग।
तो वहाँ से मुझे इंडस्ट्री एक्सपोजर भी हो जाता है, फिर देन मुझे यूज़र का सोचने का मौका मिल जाता है कि लाइक एज आई टोल्ड यू कि मैं अपनी कंपनी के लोगों के लिए सिंस आई एम वर्किंग इंटरनली, तो उसमें हम जो है वो उस पर्सन के साथ कनेक्ट करती हूँ कि लाइक दिस इज समथिंग और इसमें मुझे ये फीडबैक मिला है, सो नाउ यू कैन टेल मी कि मैं इस फीडबैक को अगर इस तरह इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ तो विल दैट वर्क फॉर यू? मतलब वीपी की भी बात सुनी जा रही है और यूजर की भी बात सुनी जा रही है। इट्स नॉट समथिंग लाइक दिस, और ये कोई ऐसे मतलब एक दो दिन का काम नहीं होता है। डिजाइनिंग पाकिस्तान में बहुत जल्दी करवाते हैं, इसीलिए यूएक्स पे कोई ध्यान नहीं देता। एंड इवन अगर आप लोगों को पूछो तो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक 9 out of 10 पीपल, उनको पता भी नहीं होगा कि यूएक्स होता क्या है। दे सिंपली रॉट यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, एंड व्हेन यू आस्क देम कि आपका लाइक क्या यूएक्स में आप क्या कर रहे हो, दे लिटरली हैव नथिंग, बिकॉज आई नो माई फ्रेंड्स, आई नो माई कोलीग्स आर वर्किंग, तो इतना कोई एक्सपोजर नहीं हो रहा है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान में इस चीज़ों को वो करना चाहिए, बिकॉज जब आप बाहर की कंपनी, इवन स्टार्टिंग में आई डिड सम फ्रीलांसिंग, तो उसमें आई कनेक्टेड विद लाइक इसी तरह आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही होते हैं वहाँ पे भी। तो उसमें भी सिंस इतना वो कल्चर वो हो गया हुआ है कि वो कहते हैं कि अच्छा 2 दिन में आप हमें डिज़ाइन बना कर दे दें, नो यूएक्स, जस्ट डिज़ाइन। और फिर जो है वो लिटरली वहाँ पे तो डेवलपिंग भी कोई नहीं हो रही होती। आई डिड 2 or 3 प्रोजेक्ट्स, तो मैंने उसमें कहा कि लाइक दिस इज नॉट समथिंग जो मेरे वैल्यूज के साथ अलाइन हो रही है, बिकॉज मैं तो सिर्फ ये यूआई की फिक्सेस कर दे रही हूँ, और वो भी जो है वो टेम्पलेट्स, देयर आर सेवरल फिग्मा की टेम्पलेट्स होती हैं, वो आपके सीनियर कह देता है कि उसको आप फिक्स कर दो और ये आप डिज़ाइन करके दे दो। यूजर और ये सब चीज़ें प्रोडक्ट के लिए, इसीलिए आई थिंक द प्रोडक्ट्स दैट आर सक्सेसफुल दे नो देयर यूजर्स, और वो अपने यूजर्स को वैल्यू भी करते हैं। अब जैसे हम देख लें कि लाइक उबर नहीं चली पाकिस्तान में, करीम नहीं चली, लेकिन इनड्राइव चल गई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी मेंटालिटी है कि उनको जो है वो थोड़ी अथॉरिटी चाहिए होती है। बेशक इनड्राइव पे उतना ही फेयर आ रहा होगा जितना यांगो पे या करीम पे आता था या उबर पे आता था, बट वहाँ क्या हो रहा था कि लाइक आपको फिक्स प्राइस मिल रही थी, तो आपको होता था कि अच्छा मैं इसके साथ प्ले अराउंड नहीं कर सकता। इनड्राइव ने वही चीज़, लाइक गाड़ी है ना, गाड़ी आ रही है जा रही है, बट दे लिटरली प्लेड विद दैट। फिर वो देर इज अ पर्सन लाइक आई थिंक यू नो हिम, सुहेब आरिफ, द पर्सन who has recently joined Revolt. Yeah. That person is from Sada Pay, and I saw his LinkedIn post जहाँ पे उन्होंने starting में Sada Pay, even I was in I think in university, and there was this hype, मतलब एक sudden hype हुई कि इतने friends को refer करो तो वो आपको कोई loyalty card मिलेगा और this or that or something. That was something जो user के साथ, मतलब पाकिस्तानी अवाम ने उसके साथ इतना connect किया। तो वो ऐसे नहीं हो गया ना, लाइक अगर उनका वो होता तो वो यूजर को ना देखते, वो ऐसे ही कर देते जिस तरह की बाकी की बैंकिंग ऐप चल रही हैं, तो वो उसी के साथ ही कनेक्ट करके वो करते, तो देयर विल बी नथिंग डिफरेंट। वो 2 महीने 3 महीने चलती है, मे बी शायद वो चलती ही ना, बिकॉज लोग कहते हैं कि हम इस पर ट्रस्ट ही क्यों करें। लेकिन दे प्लेड विद ह्यूमन साइकोलॉजी, उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी किया कि फिनटेक में क्या चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए। सो आई थिंक इट टेक्स टाइम, और इसमें भी लाइक सादा पे आई थिंक रिमोट वर्क करता है, और पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। देर इफ यू आस्क देम टू हैव लाइक वर्क फ्रॉम होम करना है, तो उनको ऐसे लगता है कि घर में हम कुछ भी नहीं करेंगे। And literally like starting में I don't mention that company in my CV because I literally worked there for like 1 month, but they used to have a tracker on the laptop, और जिस पे वो आपकी मॉनिटरिंग कर रहे होते थे कि like are you completing that 8 hours। और उस पे भी I didn't use their laptop because they were giving me Dell, so I had my own laptop, और मेरे ही लैपटॉप के ऊपर मेरे साथ जो है वो ट्रैकर सारा दिन मेरे घर में भी वापस आता था। So I think we should seriously like trusting people, वो भी हम भी users हैं, companies को हमें भी समझना चाहिए, but yes this is something. आई मीन 8 आवर्स वाली तो फिर भी ठीक है कि अच्छा आपके 8 घंटे पूरे हो रहे हैं कि नहीं। आई ऑल्सो हर्ड कि कंपनी मुझे नहीं याद, बट आई हर्ड अ लॉट कि देयर वाज अ कंपनी, उसमें वो कहते कि आपने अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अब वो ना वो टाइम अलग है, बट अगर आप कोई आई थिंक 15 सेकंड तक अगर आपका ट्रैक पैड या माउस या क्लिक एक्टिव नहीं है ना, तो Oh वो yeah, भी that बता is देगा। exactly that. तो वो भी बता Exactly देगा। that, and even that person who has access to that वो ट्रैकर वाली चीज पे, he can even see कि आप आपके लैपटॉप पे चल क्या गया है, मतलब लाइक which app you have opened, और क्या चीज, मतलब there are a lot of things जिसके लिए हमें YouTube पे स्विच करना पड़ता है, because there are a lot of material, Yeah. मतलब
इवन इफ यू आस्क मी तो आई विल से कि मैंने जो बहुत ज़्यादा अपनी लर्निंग की है वो यूट्यूब के थ्रू की है. Yeah. इवन कोर्सेरा हेल्प मी अलॉट. मैं शुरू में सिंस दे हैव लाइक फ्लेक्सिबल उनकी जो भी था, तो आई डिडंट पे फॉर एनी ऑफ दैट बिकॉज आई कुडंट अफोर्ड इट, बट दे लिटरली गेव मी फुल लाइक फाइनेंशियल एड फॉर एवरी थिंग. आई डिड मेटा का कोर्स और देयर वाज दिस बिकॉज आई वाज लैकिंग इन यूआई, तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का भी पूरा उनका स्पेशल कोर्स था वो भी कर लिया. बिकॉज दिस इज समथिंग कि आपने अपनी मिस्टेक्स, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले इंटरव्यू में बोला कि लाइक आई एम नॉट गुड एट यूआई, तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस पर ये नहीं किया कि लाइक ठीक है बस मैं इस पर कोई काम नहीं करूँगी. आई वर्कड ऑन दैट कि ओके दिस इज समथिंग जो मेरी वीकनेस है, मैं इस पर काम कर लेती हूँ. तो मतलब लर्निंग के भी बहुत प्लेटफॉर्म होते हैं कि आप जो है वो आपको रोज जो है वो अपने आप को भी इवैल्यूएट करना चाहिए कि लाइक आप क्या. इवन मैं दिस इज अ वेरी फनी थिंग, मैं हर बंदे को कहती हूँ कि मैं कंपनी स्विच करने का फैसला मेरा तब होता है जब मैं हफ्ते के बाद अपनी इवैल्यूएशन करती हूँ कि लाइक मैंने क्या सीखा. और जब मुझे हफ्ते बाद कोई चीज़ एक चीज़ नहीं मिलती ना, तब मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि लाइक आई थिंक दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी अब. सो लाइक इट्स बेटर टू स्विच. Awesome, awesome. So, like अभी since you again मैं first point पे आऊँ जो कि हम लोगों ने start किया था कि you were a psychology student, ठीक है, and then you changed the route to the design. तो in current times, ठीक है, जो भी psychology के student हैं and if they want to maybe learn the design, ठीक है, at any point in their life, so what do you think कौन सी ऐसी skills हैं जो कि दे नीड टू लर्न, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दे हैव टू कीप इन माइंड, या अपॉर्चुनिटीज़ दैट दे जो भी वेट कर रही हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इन द फ्यूचर अगर वो डिज़ाइन वाली साइड पे जाना सोचती हैं, सो वो क्या होंगी, लाइक कौन सी स्किल्स उनको चाहिए और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो कि उन्हें अभी नहीं पता कि एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए डिज़ाइन के अंदर, तो वो क्या क्या होंगी. सो इफ़ दैट्स समथिंग दैट यू कैन आंसर. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइक हम लोग अपने आप को बहुत बाउंड कर लेते हैं कि हम स्पेसिफिकली एक चीज़ को ही आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे. तो एक्सप्लोर करना चाहिए हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, बिकॉज थोड़ा टाइम लगता है आपको अडेप्ट करते हुए, बट आप कर लेते हो. और दूसरा ये कि साइकोलॉजी में आपको जो है ना वो ह्यूमंस के साथ डीलिंग सिखाई जाती है कि आपने जो है इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल तो आपने उसके साथ कैसे बात करनी है. अगर इफ़ अ पर्सन लाइक वांट सम एडवाइस तो आपने उसको कैसे टैकल करना है. तो दिस इज समथिंग जो कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा यूज होती है. हम इसको आमतौर पे ये कहते हैं कि लाइक इस बंदे को बात करने का पता है बिकॉज दैट पर्सन लर्न इट. और ये साइकोलॉजी में वो सब चीज़ें लर्न करवाई जाती हैं. इवन यूएक्स के अंदर जो है वो आप जो है वो अपने यूजर्स के इंटरव्यू करते हैं, सर्वेज होते हैं. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई लर्न इन माई क्वालिटेटिव साइकोलॉजी के कोर्स में कि आपने यूज़र के विजुअल क्लूज जो होते हैं कि आपका अगर आपका यूज़र जो है वो कंफ्यूज हो रहा है तो आपको विजुअल कैसे पता लगेगा कि आपने किस तरह टैकल करना है उसको, आपने कैसे अच्छे तरीके से करवाना है. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आपको यूज़र के साथ कनेक्टिविटी आपके लिए आसान हो जाती है. बिकॉज आप रेंडमली अगले बंदे को ये नहीं भेजते कि ये मैंने प्रोडक्ट बना दिया, आप प्लीज इसको टेस्ट करके बता दें. इवन अगर मुझे भी कोई भेजेगा तो मैं भी उसको कहूंगी कि अच्छा अगर मुझे पता ही नहीं है ये क्या है तो शायद मैं फिल भी ना करूँ और मैं उसको फॉलो अप भी नहीं करूंगी. लेकिन अगर कोई बंदा मुझे इतना इंट्रीग करेगा उस चीज़ पे कि लाइक दिस इज समथिंग दैट इज लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर यू के मतलब ये आपको आगे फ्यूचर में ये हेल्प कर सकता है, तो मैं डेफिनेटली करूंगी. और दूसरा ये कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आपको आपकी मेमोरी के बारे में बताते हैं. वो लर्निंग के इवन पैटर्न्स होते हैं कि देर आर लॉट ऑफ पीपल जो यूट्यूब वीडियोज देखकर लर्न करते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो टेक्सचुअल चीज़ें पढ़कर, किसी को ऊंची पढ़कर जो है वो लर्निंग होती है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स कि आपको पता होता है कि देर इज डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड. दिस इज नॉट समथिंग कि आपने एक तरह के लोगों के साथ डील करना है और आपकी प्रोडक्ट भी हर तरह के लोग जो है वो यूज करेंगे. इफ यू आर मेकिंग इट फॉर जेंजी, तो जेंजी में भी आगे बहुत सारी डोमेन्स ऐसी हैं कि मतलब इवेंचुअली आप जाके मतलब अगर स्केल देखा जाए तो 1 वाला जेंजी 10 वाले जेंजी से बहुत डिफरेंट होगा. तो डाइवर्सिटी की भी जो नॉलेज है वो पूरी आपको उसी से आ रही होती है. और यूआई में आपको इस तरह हेल्प करता है साइकोलॉजी कि आपकी कलर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंस आप डिजाइन कर रहे हो तो आप किस तरह आप इवन विजुअली भी आप अपने यूजर के साथ कनेक्ट ही कर रहे हो. हर चीज में आ जाके यूजर आता ही आता है. सो दिस इज समथिंग. और जो है वो कोर्सेज आई वुड रिकमेंड पीपल कि आप लोग जो है वो अगर आपकी डिग्री में आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने कोर्स खुद सेलेक्ट करना है तो यू शुड डू फ्यू कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस बिकॉज हमारे यहाँ पे नहीं करवाया जाता है. बट अगर आप आगे यूआई यूएक्स प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए आ रहे हो
तो मुझे इट टुक मी लाइक 8 months टू गेट टू नो कि अच्छा ये पीछे बैकएंड में ये चीज़ें हो रही होती हैं, ये हो रहा होता है, वो हो रहा होता है। सो अगर आपने वो अपनी स्टडीज़ में ही कर ली हो तो वो आपके लिए ज़्यादा वो रहेंगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने अपनी स्टडी में पढ़ी वो मुझे एज सच आगे काम नहीं आई, बिकॉज आई वॉजेंट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मैं आगे अपनी कौन सी डोमेन रखूंगी। और तीसरी चीज़ ये है कि सेंस साइकोलॉजी के बाद जो है वो साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनका मेडिकल के अंदर एडमिशन नहीं हुआ होता, तो दे मोस्टली वांट्स टू परस्यू क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो उनके लिए अगर इफ समवन इज थिंकिंग टू हेल्प पीपल थ्रू देयर लाइक डिग्री, तो इट्स रियली लाइक प्रोडक्ट डिजाइनिंग रियली हेल्प्स यूजर्स, मतलब ह्यूमंस के लिए अगर आप बना रहे हो तो ये भी एक आप उनकी हेल्प कर रहे हो। और एक्सेसिबिलिटी का बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि जिस तरह कलर ब्लाइंड लोग होते हैं, हम जो यूआई के अंदर कलर यूज़ कर रहे हैं, स्पेसिंग, पैडिंग, देर आर लाइक ये भी मेरी स्टडी का पार्ट था कि देर आर पीपल जिनको मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो उनको जिस तरह वो तारे ज़मीन पर ईशान था, उसके जो वर्ड्स थे उसको वो समझ नहीं आते थे, बट दैट पर्सन हैड सम अदर थिंग्स। तो मतलब उन लोगों को भी अपने माइंड में रखकर डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी पीछे से रूट्स साइकोलॉजी की तरफ ही लेकर जाती हैं। फिर आपकी स्क्रीन के अंदर कितनी इनपुट फील्ड्स आनी चाहिए, कितना लंबा फॉर्म होना चाहिए, कितना स्क्रॉल हो रहा है, उसमें भी क्या है कि यूज़र बिहेवियर है। हम टैब्स देने लग गए हैं, क्यों? क्योंकि जितना लंबा स्क्रॉल होता जाता है उतनी आपकी अटेंशन स्पैन खत्म हो गया और आपका यूज़र जो है वो चला जाता है। फिर दिस इज समथिंग कि अगर आपकी वेबसाइट है तो उसमें अगर आपने अपना मेन विजुअल्स नहीं अच्छे रखे या इन्फॉर्मेशन नहीं रखी, अब जैसे सर्च बार है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लाइक व्हेन आई वाज डिजाइनिंग इन द एंटरटेनर, तो हमारी बड़ा मेन डिस्कशन थी कि हमने सर्च को बंद रखना है या फिर जो है वो यूज़र के लिए अपने सर्च बार को फिक्स करके ओपन करके रख देना है। तो इस पर भी पूरी डिबेट थी कि लाइक पीछे क्या साइकोलॉजी है, मैं आ रही हूँ तो मुझे खुली हुई चाहिए कि नहीं। इवन नेटफ्लिक्स, सी नेटफ्लिक्स की एग्जाम्पल, कितना अच्छा वो यूज़र, हर यूज़र के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको अब मतलब अगर मैं हूँ, अगर मैं जापानीज़ देख रही हूँ, कोरियन देख रही हूँ, तो वो मुझे उस लिहाज से वो देना शुरू कर देता है, बट वो मुझे उस पर स्टक नहीं करता। वो मुझे फ्रीडम देता है कि मैं बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करूँ। तो आई थिंक दीज आर ऑल द थिंग्स। बाकी जो है वो आई बिलीव के हर बंदे के जो है वो इंटरेस्ट होते हैं, बट अगर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ वाले थोड़ा इसका एक्सपोजर देना शुरू करें कि लाइक दिस इज समथिंग प्रीटी नॉर्मल, कि अगर आप साइकोलॉजी के बाद प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर जाना चाह रहे हो तो इट्स नॉट समथिंग कि आप स्विच कर रहे हो। बिकॉज मैंने इतनी ज़्यादा, अभी मेरे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं कि लाइक हाउ बोथ ऑफ दीज कैन कनेक्ट। तो लॉट ऑफ पीपल, लाइक बहुत सारे लोग जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत जो है ना मिक्स्ड इमोशंस के साथ होते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि उन्होंने आगे क्या करना है। और अगर बैक इन द टाइम अगर कोरोना में मैं ये सब एक्सप्लोर ना करती तो आई थिंक मैं भी उन्हीं लोगों में से होती कि मुझे समझ ना आई होती कि मैंने आगे क्या करना है और मैं क्या चीज़ फॉलो करूँगी। बट बट आई थिंक कि थोड़ा सा हार्डवर्क और स्किल्स स्किल्स तो आई थिंक आजकल के डोमेन में यही चल रहा है कि अब डिग्रीज का इतना स्कोप नहीं रहा है। दे आस्क फॉर योर स्किल्स, कि आपके पास स्किल्स क्या हैं, तो आप किसी भी डोमेन से। आई हैव लाइक रिसेंटली कनेक्टेड विद अ पर्सन हु हैज़ लाइक बैकग्राउंड इन बायोटेक और वो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर रहा है। तो ही वॉज आस्किंग मी कि मैं इसको किस तरह वो कर सकता हूँ क्या। सो पीपल आर गेटिंग अवेयरनेस, बट इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, बट स्टिल जो है वो बिकॉज इट्स अ गुड जॉब। आई रियली लव वर्किंग वट आई एम वर्किंग। आई डोंट नो कि लोगों की मतलब सिंस एवरी वन हैज़ देयर ओन ओपिनियन एंड परसेप्शंस, तो आई थिंक आई एम प्रिटी श्योर कि इट्स वन ऑफ माई एजेंडा, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद एन एनजीओ एज वेल। तो हम चाह रहे हैं कि हम इस बारे में अवेयरनेस जो है वो रेस करें कि साइकोलॉजी के बाद जो है वो आप ये कर सकते हो, बिकॉज सीएस के लोग जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाके अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी पे अभी तक मैंने एक भी नहीं देखा है कि किसी बंदे ने जाके अपनी यूनिवर्सिटी में बोला हो कि लाइक दिस इज समथिंग यू कैन डू। और मतलब बैक इन द टाइम व्हेन वी आर किड्स और हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि बिकॉज देयर इज सोसाइटल प्रेशर कि जैसे ग्रेजुएशन हो आपकी जॉब लगे और आप जो है वो फ़ौरन से आप कमाना शुरू कर दो। तो उसमें यही होता है कि आपको फिगर आउट करना पड़ता है फ़ौरन कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो साइकोलॉजी के बाद तो अगर आप मास्टर्स नहीं करते क्लिनिकल में तो आप जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। पीपल आर डूइंग इट एंड आई एम नॉट जजिंग देम। तो ये एक फील्ड है लाइक मैंने सिर्फ बैचलर्स ही किया है एंड सी आई हैव डन लाइक 25+ सर्टिफिकेशंस, वो इसी चक्कर में कि लाइक टू लर्न। तो वो मैं करती जाती हूँ। तो बस वो यही है कि रोज़ एक चीज़ नहीं आ रही होती है, आपको इंडस्ट्री के साथ जो है वो अप टू डेट रहना पड़ता है। तो आई होप कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल कि आप क्या आगे डोमेन फर्दर कर सकते हो, बिकॉज आई हैव लिटरली लाइक रिलेटेड इट टू 10+ थिंग्स के आप यूएक्स और साइकोलॉजी के साथ कैसे कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दैट्स वेरी हेल्पफुल. Before we like conclude this amazing conversation, do you have anything to ask?
Um, I want to ask you, okay, like, how did you start this podcast, and what was your like thought process behind it? Okay, you will connect with people and ask about their things and like help people around if they have to like ask something. कूल सो मेरा लाइक बहुत सिंपल सी चीज़ है एंड दैट इज़ मुझे नए लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। इट कुड बी, Nice. हाँ, कनेक्ट करने में, ठीक है। सो उसमें होता ही है कि एक तो डाइवर्सिटी तो होती है। अब Hmm. एक और जो लाइक इट्स अ स्किल, नहीं, इट्स समथिंग जो कि मेरी बेसिकली मेरे अंदर है, दैट इज़ द लेजीनेस, ठीक है। और Hmm. मैं उठ के नहीं जा सकता किसी से मिलने। सो बेस्ट मुझे यही समझ आता है कि हम ऑनलाइन तो कनेक्ट कर सकते हैं, सही है। Yeah. तो जो मेरे माइंड में था वो ये था कि क्योंकि मुझे कनेक्ट भी करना है और लाइक ठीक है, मैं कोर्सेज से किसी हद तक सीख सकता हूँ, ठीक है। और Hmm. प्रॉबली मैं परसों भूल जाऊँगा मैं आज जो भी सीखूँगा, अनलेस मैं उसको अप्लाई कर लूँ, Exactly. ठीक है। और वो प्रॉब्लम मुझे डेली आएगी भी नहीं। एक और लाइक एक मीडियम क्या है सीखने का, कि मैं कॉन्वर्सेशंस के थ्रू सीखूं, ठीक है। सो Hmm. जब हम रैंडमली भी बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी डिज़ाइनर्स हैं, इवन नॉन क्रिएटिव भी हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहेगा, ठीक है, और मुझे याद रहेगा। Hmm. तो पहली चीज़ तो ये है कि तो जो है मेरी जो मेमोरी है वो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्वर्सेशन के थ्रू लर्न कर रहा हूँ। Hmm. अब Yes. अब इसमें सिर्फ एक सबसे बड़ा कैच ये है कि वो एक कॉन्वर्सेशन से एक पॉडकास्ट कैसे बन गया कि मैं उसको सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो इट्स जस्ट कि आई एम Yes, हैविंग लाइक, exactly. हाँ, इट्स जस्ट कि आई एम हैविंग द कैजुअल कॉन्वर्सेशंस विद द मिनिमम Hmm. सेटअप, मतलब कोई माइक नहीं, कोई स्टूडियो नहीं, कोई कुछ नहीं। इट्स जस्ट के साइड पे एक Exactly. रूम है जो कि खाली पड़ा हुआ है, तो आई एम जस्ट लाइक पुटिंग लाइट्स इधर उधर, और आई एम जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन जैसे कि मैं वैसे भी करता, ठीक है। तो Hmm. मैं वही कर रहा हूँ और साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और साथ में यूट्यूब भी कर रहा हूँ, लाइक अपलोड कर देता हूँ मैं यूट्यूब पे। तो फिर उससे कुछ फीडबैक्स मुझे इस तरह के भी मिले हैं कि इट्स हेल्पफुल, क्योंकि हमारा ना डिज़ाइन का बैकग्राउंड है, ना हमारा लाइक डिज़ाइन से रिलेटेड किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड है। बट इन ऑर्डर फॉर अस टू अंडरस्टैंड डिज़ाइन के काम कैसे करता है, कितने लोगों के लिए किस तरह से कौन कौन सी अप्रोचेस काम करती हैं, सो दैट्स वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लिए काम करी है, ठीक है। तो मेरा भी यही है कि विद द मिनिमम सेटअप, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं लेज़ी हूँ, ठीक है, तो विद Hmm. मिनिमम सेटअप, विद मिनिमम एफर्ट्स, ठीक है, मैं कितने ज़्यादा लोगों से बात करके उसको डॉक्यूमेंट करके अपलोड करके कर सकता हूँ। एक तो ये चीज़, और फिर उससे आई डोंट नो कि कब कौन सी चीज़ जो है वो हेल्प करेगी लोगों को। Exactly. तो या इट्स मोर ऑफ लाइक दैट, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यू केम इन डिज़ाइन बिकॉज यू वांटेड टू हेल्प पीपल, और उसी की बेस पे Hmm. यू आर बिल्डिंग डिज़ाइंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग आउट पीपल। सो मेरा भी एक यही गोल है, सिंपल सा, कि आई वॉन्ट टू हेल्प 1 बिलियन पीपल, ठीक है, इन एनी कैपेसिटी या इन Yeah. एनी वे पॉसिबल, ठीक है। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद द डिज़ाइन, ठीक है, मैंने डिज़ाइन किया, स्टार्ट किया। वो मुझे लगता है कि जितना भी मैंने अभी 3-4 साल हो गए हैं काम करते हुए, ठीक है, बट वो उस स्केल पे जैसे कहते हैं ना, फट नहीं रहा, एक्सप्लोड नहीं हो रहा, Hmm. वो के Hmm. एक्सपोनेंशियली वो चीज़ आगे चले। सो वट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ आई एम एक्सप्लोरिंग अदर मीडियम्स एज वेल। पॉडकास्ट एक है, Hmm. बुक दूसरा है, ठीक है, और कोई पता नहीं, दिस इज़ द गिटार, तो कोई पता नहीं इन द फ्यूचर Oh, में I seriously wanted to learn guitar, and it's something in my to-do list. I hope I will one day, because my mom doesn't like it, so she said no guitar. But I'm like hoping it someday she will accept it, and या I will learn guitar. तो इट्स जस्ट क्योंकि अब जो अभी करंट जो दौर है, ठीक है, पीपल आर नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स कोर्सेज, प्रॉबली बुक्स, इस तरह की चीज़। सो मुझे Yes, नहीं yes. पता कि कब ये मेरे काम आएगा, और आई प्रॉबली कुछ भी फजूल सा जो भी होगा वो मैं गा के साइड पे कर दूंगा, और मुझे नहीं पता कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हाँ, हिट कर like जाएगी। बैक इन 2023 कोर्सेज का बहुत स्कोप आया था, एंड या आई यूज्ड टू डू के वो हफ्ते के अंदर में 3-4 कोर्सेज लेती थी। बट देन इवेंचुअली जब एआई वाला आया तो आई स्विच टू, एक दो मैंने कोर्सेज लिए, बट देन आई लर्न के नो, दिस इज, आई थिंक आप प्रोफेशनल लाइफ में अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज्यादा सीखते हैं एज कम्पेयर टू दैट कोर्सेज। वो बस आपके क्रेडेंशियल्स ही ऐड हो होते हैं। बट रिसेंटली अगर if someone wants to like pursue this like product designing after psychology, so I have recently did a certification from LUMS. So that was really nice. The person was really nice. Was the pura UX, because he did UX engineering from
गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी। तो ही एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, और वो लाइक प्राइमरी बेसिक लेवल का बहुत अच्छा कोर्स है इफ समवन वांट्स टू एक्सप्लोर के इधर दिस डोमेन इज फॉर देम और नॉट। तो उसके अलावा लाइक इफ समवन रियली वांट्स टू हेल्प पीपल, तो इफ लाइक यू हैव गिटार एज अ हॉबी, तो आई डू सेशंस विद एन एनजीओ फॉर मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग लाइक दिस। अभी जो है वो वी डू प्लांटेशन ड्राइव एज वेल, और अभी हमने मेंस्ट्रुएशन हेल्थ अवेयरनेस पे कैंपेन की है कोहरिया वाली साइड पे, बिकॉज दैट समथिंग थोड़ा अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है, तो वहाँ पे जो है वो ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक वक्त के साथ साथ आपको अपने बारे में पता लगता है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट हेल्प्स यू एंड व्हाट मेक्स यू फील गुड, तो यू ऑप्ट फॉर दैट डोमेन। बट आई थिंक पीपल शुडंट वरी अबाउट के हमें जॉब नहीं मिल रही है तो हमारा क्या होगा। आई थिंक सिर्फ नो, जैसे वो सोक्रेटिस कहते हैं कि नो दाई सेल्फ, तो आई थिंक ये एक वही चीज़ है कि आप खुद को समझोगे तो आप हर डोमेन के अंदर रेस कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर डिग्री तो आपने आगे उसी के साथ वो करना है। इवन बिफोर कंक्लूडिंग, I literally, someone asked me a question ke you spent 4 years studying psychology, and that means you didn't know what you were doing and now you have like switched. This is a very common practice in Pakistan के लोग आपको इस तरह बैकलैश करते हैं कि आपने 4 साल क्या किया कि अगर आपने अपनी डोमेन ही चेंज कर ली है। तो दिस इज समथिंग कि उस पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो बायोटेक माइक्रोबायोलॉजी के बाद अगर आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आ रहे हो, तो ईच डे इज अ न्यू लर्निंग डे, एंड इतना लोगों की बातों पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज सी मेरे से बहुत स्टार्टिंग करियर में पूछा गया था, तो आई डिडंट गेट लाइक ऑब्वियसली एट दैट टाइम आई गॉट हर्ट के समवन हैज आस्क्ड लाइक इतनी ऑडेसिटी किसी में कैसे आई कि मतलब वो मेरी डिग्री को ही कह रहे हैं कि मतलब 4 साल यू डिड नथिंग एंड नाउ यू आर डूइंग समथिंग एल्स। बट अब मैं देखूँ तो मैं उसको ऐसे सोचती हूँ कि लाइक उस पर्सन ने मुझे मेरे अंदर इतना स्टेमिना पैदा किया कि मैं उसको दिखा रही हूँ कि लाइक नाउ आई एम डूइंग समथिंग एंड पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग इट कि साइकोलॉजी और यूएक्स का इतना कनेक्शन है। एंड दैट पर्सन वाज नॉट इवन कन्विंस्ड फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन के लाइक यूएक्स का साइकोलॉजी से। ही वाज लाइक जो सीएस का बैकग्राउंड होता है वो सीएस का ही रहता है, एंड प्रीटी श्योर के सीएस के एक टाइम पे जाके यू विल गेट ब्लैंक एंड यू विल नॉट गेट बी प्रोमोटेड। बट सी एआई आ गया है, मुझे कोड करने की ज़रूरत ही नहीं रही है। मैं फिग्मा पे जाती हूँ, मैं उसको कोड जाके उसको दूंगी, वो बना देगा मुझे, मैं कर्सर को दूंगी वो मुझे बना देगा। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी ने मुझे ऐसे बहुत हेल्प की है, एआई ने मेरी बाकी बहुत ये सोल्यूशन कर दिया, बिकॉज मैं खुद सी एस एस एच टी एम एल जावा स्क्रिप्ट, मेरे बड़े प्लान्स थे कि मैं उन सबको सीखूंगी, तो मैंने सी एस एस भी स्टार्ट की थी, तो थैंकफुली एआई ने कहा कि नो यू डोंट हैव टू डू दिस, लेट मी टेक योर जॉब, ये वाली ले लूंगा मैं आपकी जॉब। नहीं नहीं, ये तो बेस्ट है। लाइक मुझे अभी भी लगता है कि डिज़ाइन जो है वो सी एस से डायरेक्ट कोर रिलेट नहीं करता। दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ आई थिंक आर्ट्स और बिजनेस। यस, मुझे नहीं पता कि सी एस डायरेक्टली कैसे रिलेट करता है डिज़ाइन से या यू एक्स से या यू आई से। आई थिंक उसमें सिर्फ यही होता है कि एम्पैथेटिक पार्टी आता है आपका, कि आपने डेवलपर्स का भी थोड़ा सोचना होता है कि लाइक वो बैक एंड पे चीज़ों को कैसे देखेंगे या फ्रंट एंड पे ये चीज़ बन सकती है या नहीं, और ये भी कि बिजनेस लेवल पे हम ये वाला कोड अगर लगाकर वो आगे प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, या हम इतना चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी कितनी मिल रही है कि आप डेवलपर के साथ, तो आप अगर उनके साथ फेस टू फेस भी कम्युनिकेट कर लो तो आई डोंट थिंक सो कि उसके लिए आपको कोडिंग समझने की जरूरत है। इट्स मोर लाइक आपको उनको भी समझने की जरूरत है। अगर इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद डेवलपर्स, तो वो भी आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। लाइक आई डू लिटरली, मेरी रिकरिंग मीटिंग्स होती हैं एवरी थर्सडे विद डेवलपर्स, तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मुझे जो है वो फॉरन दे टेल मी के दिस इज समथिंग जो नहीं हो सकता है, आप इसको ऐसे कर लो ऐसे कर लो, और उसको मैं कह देती हूँ कि नहीं, डिजाइनिंग वाइज जो है वो आई थिंक यूएक्स ज्यादा बेटर इसका है, यू हैव टू लाइक चेंज इट। तो बोथ वेज पर फ्लेक्सिबिलिटी चल रही होती है। या सो शुरू में लाइक यू फील लाइक अच्छा सब सीएस बैकग्राउंड वाले हैं तो पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, बट इवेंचुअली अब तो जितना एआई आ गया है, लिटरली मैं अगर चैट जीपीटी को कहूँगा कि मुझे कोर्स वो समझा दो कोडिंग, तो वो मुझे इजी वर्डिंग्स में कोडिंग भी शायद समझा देगा कि क्या हाँ है। हाँ, ये तो है। या आई एग्री। Cool. So with that, I don't have anything else in mind. If you have anything, please go ahead. No, I think we had a pretty good discussion. I Yeah, really liked, enjoy talking to you. yeah, It was yeah. an informational session, and I hope someone out there will learn something from this. Yeah, I really hope so. I really enjoyed it and thank you so much, Manil, for showing up. बहुत मज़ा आया। ठीक है, चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे भी हुई टेक्नोलॉजिकली, लाइक Um, इंटरनेट वाइज, बट इट्स फाइन। सो या, yeah, थैंक यू सो मच एंड I'll see you around.
Thank you for having me. It was a good time. Allah Hafiz.